visiting the past. Before we study about the grandeur of the medieval period of Indian history, हम इससे पहले हम medieval period of Indian history के बारे में पढ़े. Let us quickly visit the past year to revise what we studied in the class 6 में हमने क्या पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं. We studied that history is divided into 3 periods: ancient, medieval and modern. हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है. एंशिएंट, medieval एंड मॉडर्न. आपको गलत है. We studied about the सही कह रहे हो. आपका रहने दो. और तो लाते केवल ट्रिक का मतलब We studied about the ancient period last year. हमने लास्ट ईयर एंशिएंट पीरियड के बारे में पढ़ा था. This year we will study about the medieval period. हम इस साल पढ़ेंगे medieval period के बारे में. What does the word medieval mean in history? History में medieval का मतलब क्या है? The word The word medieval stands for something that is located in the middle. ये एक ऐसी चीज के लिए हम कुछ बोलेंगे जो middle में, बीच में. So the period that lies between the ancient and the modern periods of history is known as the middle or medieval period. वो period जो ancient के और modern periods के बीच में lie करता है उसे हम कहते हैं middle या medieval period. This division is not made on the basis of days. ये दिनों के हिसाब से नहीं बना या years के हिसाब से नहीं बना और any mathematical calculation या measurement के हिसाब से नहीं, but on the basis of changes in the social, political and economic structure. ये हमारा हुआ है social, political and economic structure में changes के बिहाफ पे. And in the ideas, faith and beliefs. वो ideas के, विश्वास के and beliefs के बिहाफ पे. That show a sharp contrast when compared to the ancient as well as modern times in history. जब एकदम से change इसमें दिखाई देता है जब हम compare करते हैं ancient and modern times की history के बारे में. In India, the medieval period ranges from the beginning of the 8th century. इंडिया में medieval period जो start होता है वो 8th century से start होता है यानी 700 CE common era to the end of 18th century. कब तक होता है ये medieval period? 18th century यानी 1750 CE. That is for the nearly around 1000 years. ठीक है, nearly. Historians say that the medieval period starts from the 8th century. हिस्टोरियन कहते हैं कि जो medieval period था वो 8th century से start हुआ था because important and visible changes were observed in the society. उस time important और देखने लायक changes society में observe हुए थे जो हमें एकदम से notice किए जाते हैं या polity में या economy में, religion में and culture during this century. For convenience, the historians have divided the medieval period into 2 parts. Historians ने medieval period को 2 parts में divide कर दिया, एक early medieval period and late medieval period. ठीक है? The early medieval period dates from the 8th century to the 13th century. जो early medieval period है वो 8th century से 13th century का माना जाता है. Such that between 700 and 1200 CE का. ठीक है? The powerful kingdom of the Palas, Pratiharas, Rashtrakutas, Cholas and Rajputs ruled this period. यानी 700 से 8th century से 13th century यानी 700 से 1200 CE के टाइम पे कौन कौन सी किंगडम्स लाई करती है? पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, चोलास एंड राजपूत. कौन कौन सी? पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, चोलास और राजपूत. Late medieval period. The late medieval period dates from the 13th century to the 18th century. ये जो late medieval period का है ये 13th century से 18th century तक है. Such that from 1200 to 1750 CE तक the rule of the Turks, the Afghans and the Mughals comes within this period. जो Turks हैं उनका शासन इस period में आता है, अफगान्स का एंड द मुगल्स का इस पीरियड में शासन आता है. लेट
मम्मा इसका बता मुझे ज्यादा बड़ा होगा पक्का। मम्मा इसके में आ गया तो आप दूसरे Pick the correct option. What does medieval stand for? Second, middle or side? मिडल Why have historians divided the medieval period to show stark contrast as per mathematical calculation for convenience? फॉर कन्वीनियंस हो गया ना गलत? ये ओवर कॉन्फिडेंस ले उत्तर नहीं दिया। मैं तो बोलने जा रहा था मुझे लगा ये सही होगा मैंने बोल दिया India and its different names. India और उसके अलग अलग नाम. We need to know such important. मैं समझ ले आया मुझे ओए तू थे हम दोनों जाएंगे गलत से मत लेंगे ये बिल्कुल पढ़ा रही हो ना चुपचाप बैठ के. अदिति यहाँ बैठो चुपचाप. India and its different names. We need to know certain important facts. हमें कुछ जानने की जरूरत है before we set out on our journey to the medieval time की जर्नी को जब हम देखेंगे. First our country was called by different names. हमारी country पहले अलग अलग नामों से जानी जाती थी. During different periods of history, history के अलग अलग periods में. In ancient times our country was known by the names of जम्बूद्वीप या भारतवर्ष. एंशिएंट टाइम में हमारी कंट्री को जम्बूद्वीप या भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था. द पुराणास रेफर टू भारतवर्ष एज द कंट्री दैट वाज रूल्ड बाय ए ट्राइब कॉल्ड भारता. पुराणास में भारतवर्ष एक ऐसी कंट्री को कहा गया है जहाँ पे शासक भारता नाम की ट्राइब का था. भारत यानी भारत. ठीक है. उसके नाम The name भारतवर्ष is also mentioned in ऋग्वेद. ये जो भारतवर्ष नेम है ये ऋग्वेद में भी मेंशन है. India was also known as the land of the people who lived along the river सिंधु. इंडिया को ऐसे लोगों की जमीन से भी जाना जाता है जो रहते हैं सिंधु रिवर की जमीन पे. Known to us as river Indus, जिसे रिवर इंडस भी कहा जाता है. The second book of the Parsi, जो पारसीज की जो पवित्र बुक है द जिंद अवस्था, talked about सब सिंधु के बारे में उसमें लिखा हुआ है और द लैंड ऑफ 7 रिवर्स के बारे में उसमें लिखा हुआ है. When it refers to the Indian subcontinent, जब वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो वो इसको क्या कहते हैं? सब सिंधु या लैंड ऑफ 7 रिवर्स. ठीक है. डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव वेरिड प्रोनाउंसिएशन. अलग अलग लैंग्वेजेस में इनकी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है. एज फोनिक साउंड्स के हिसाब से में डिफर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. एक रीजन से अलग दूसरे रीजन में डिफर करती है. ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज प्रोनाउंसेस संस्कृत वर्ड सिंधु एज हिंदू. जो संस्कृत वर्ड सिंधु था जो ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज में उसको प्रोनाउंस करते थे एज हिंदू. ठीक है. द वर्ड हिंदू इन फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन बिकम इंद. हिंदू को फ्रेंच में इंद बोला जाने लगा. इन इंग्लिश इट बिकम इंडिया. इंग्लिश में ये इंडिया हो गया. सिंध में पर्शियन लैंग्वेज में सिंधु को हिंदू. फिर फ्रेंच में हिंदू को इंडस रिवर को नहीं, हमारे भी और फिर इसका इंग्लिश में हो गया इंडिया. इंग्लिश में इंडिया. हिंदू बोलते थे. मैम को सिंधु रिवर को हिंदू बोलते थे. हिंदू We need to. अब सुन लो. We need to thank people of different nationalities. हमें अलग अलग नेशनैलिटीज के लोगों का धन्यवाद देना चाहिए for giving our country so many names. हमारी कंट्री को इतने सारे नाम देने के लिए. Another important fact is that our country during the medieval era had different geographical descriptions. एक दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हमारी कंट्री के बारे में है कि मेडाइवल टाइम में इसके जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस भी अलग अलग थी. In the early medieval period, the name meant the land that was situated between Indus and its 5 tributaries and also the land between the Ganga and Yamuna. ये जो नाम है जो ये मेडाइवल में उस जमीन के बारे में दिया गया था कि वो जमीन जो लाई करती है इंडस एंड उसकी 5 ट्राइब्यूटरीज के बीच में या फिर गंगा और यमुना के बीच में.
फॉर एग्जाम्पल द नेम हिंदुस्तान which was used in the 13th century by Minhaj A. Siraj. हिंदुस्तान वर्ड किसने यूज किया था? मिनहाज ए सिराज ने. डिस्क्राइब द एरियाज ऑफ पंजाब हरियाणा एंड द फर्टाइल लैंड बिटवीन द रिवर गंगा एंड यमुना. वो बताते हैं पंजाब हरियाणा एंड जो ये गंगा यमुना के बीच की जो फर्टाइल रिवर है इसके बारे में बताते हैं. फॉर हिम बैठ नहीं सकता, बदतमीजी करता रहेगा खड़े होके. For him, these areas were included in the geographical entity called the Delhi Sultanate. फिर इन एरियाज को दिल्ली सल्तनत के साथ में जोड़ दिया गया. बाबर, the founder of Mughal Empire, कौन था? बाबर. Went a step ahead to include the geography. वो एक स्टेप आगे बढ़े इसमें ज्योग्राफी को, कल्चर को एंड नेचुरल वेजिटेशन को इंक्लूड करने के लिए ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टू एक्सप्लेन हिंदुस्तान. उन्होंने हिंदुस्तान को और एक स्टेप आगे बढ़ के कुछ और उसको डिस्क्राइब करके कुछ चीजें जोड़ के. It was only in the 19th century during the British Raj, ये 19th century का British time था, that Hindustan with its territorial boundaries become identical with India. जब हिंदुस्तान अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज के साथ में इंडिया के नाम से जाना जाने लगा. ये कौन सा टाइम था? ब्रिटिश टाइम यानी 19th सेंचुरी. पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी with the end of British Raj and the partition, India got its present territorial boundaries. ब्रिटिश राज के एंड में एंड पार्टीशन के एंड में इंडिया को अपनी टेरिटोरियल